Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed a lots of the practical and theoretical concept related to the last chapter of part B, that is in cash flow statement. So in today's video, let's discuss some of the important practical problem related to the cash flow statement. First of all, in today's session, we discuss the question number 49, and thereafter we will discuss the question number 50, and such type of the short answer type of the question related to the cash flow statement helps to crack the term 1 and term 2 examination as well as the practical examination conducted by the CBSE. So the first question is question number 49, says that from the following information calculate cash flow from operating activities. So with the help of the question number 49, we have to find out the cash flow from operating activity. Surplus in the previous year is 89,000, in the current year is 71,000. Inventory in the previous year is 4,000 and current year for 12,000. And our trade receivable is in the previous year is 45,000 and in the current year is 58,000. Outstanding expenses in the previous year is 10,000 and in the current year it will be 14,600. Goodwill in the previous year is 27,000 and in the current year is 57,000. Cash in hand in the previous year is 12,000 and in the current year is 9,000. And machinery is 56,000 and in the previous year, current year is 82,000. So there are three adjustments are given. First, a piece of machinery costing 50,000 on which depreciation of 20,000 had been charged for sold for 10,000. Depreciation charge during the year was 18,000. Income tax 23,000 was paid during the year, and interim dividend paid during the year was 36,000. So first of all, you know very well in this question we have to find out the cash flow from operating activity. So operating activity find out करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? Cash flow from operating activity find out करने के लिए first of all we have find out the net profit before tax and extraordinary item. हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम फाइंड आउट करना पड़ता है और इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है. वर्किंग नोट विच आर रिलेटेड टू द नेट प्रॉफिट. This is a question number 49. Okay. So net profit before tax find out करने के लिए you know very well सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता है ड्यूरिंग द ईयर का. ड्यूरिंग द ईयर का नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है? द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर. प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना था? 89 एंड करेंट ईयर इसका 71. सो इट इज अ लॉस. 18,000 का यहाँ क्या हो गया? लॉस. सो इट इज कॉल्ड नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर. इसमें हम लोग क्या करते हैं? 89,000 नाउ इट विल बी 71,000. सो लॉस हो गया. इसमें हम लोग ऐड करते हैं प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ नो प्रपोज डिविडेंड. सो इंटरिम डिविडेंड जो क्वेश्चन में कह रहा है, इंटरिम डिविडेंड amount of interim dividend will be 36,000. And in this question income tax rupees 23,000 was paid during the year. सिर्फ paid दिया है, made के बारे में नहीं दिया. सिर्फ single information will be given related to the provision will be related to the income tax. So यही income tax यहाँ पर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. यानी जब सिंगल वैल्यू होती है तो वही क्या होता है? पेड होता है, वही मेड होता है. So 23,000 is the income tax और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. सो ये हो जाएगा आपका
41,000. So net profit before tax and extraordinary item will be 41,000. उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहला आइटम आता है आपका डेप्रिसिएशन। सो इन दिस क्वेश्चन द डेप्रिसिएशन इज गिवन। डेप्रिसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन ये गिवन है, अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 हैड बीन चार्ज वाज सोल्ड फॉर 10,000 and depreciation charge during the year was 18,000. So depreciation charge during the year is 18,000. और प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। मशीन की कॉस्टिंग थी कितनी? मशीन की जो कॉस्ट थी वो थी आपकी 50,000, जिसमें से आपका डेप्रिसिएशन कट हो गया। डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 20,000। सो नाउ उसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई? 30,000। इसकी बुक वैल्यू हो गई 30,000 और आप सोल्ड कितने में कर रहे हैं? 10,000। सोल्ड हो रहा है 10,000 में, तो आप खुद लगा सकते हैं कि जो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, जाहिर सी बात है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आप कंपेयर कर लीजिए। 50,000 30,000 बुक वैल्यू है और जबकि आप उसको सोल्ड कितने में कर रहे हैं? 10,000 रुपीज़ में। सो ये आपका 20,000 क्या हो गया? लॉस। सो पूरा एड आइटम कितना होगा? 38,000। गॉट इट? इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इट विल बी 79,000। एंड आफ्टर डेट हम लोग क्या करेंगे? इसमें वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करेंगे। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी कहाँ गिवन है इस क्वेश्चन में? इट इज गिवन इज अ ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ, वन मोर थिंग इज ऑल्सो गिवन। प्रीवियस ईयर में आपकी गुडविल की वैल्यू 27,000 है, बट नाउ इट विल बी इन द करंट ईयर इज 57,000। सो गुडविल इंक्रीज हो रही है, गुडविल डिक्लाइन होती है तो इट इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन, लेकिन बढ़ रही है तो परचेज होगा और ये इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होगा। और देख लेते हैं इसमें हम लोग सबसे पहले इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो रही है? यू कैन सी दैट पहले 4,000 थी, नाउ इट विल बी 12,000। सो 8,000 क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो इन्वेंट्री को क्या करेंगे? माइनस। सेकेंड ट्रेड रिसीवेबल, ये भी बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। एंड द वैल्यू इज एज यू कैन सी दैट ट्रेड रिसीवेबल 45 से 58 यानी 13,000 रुपये बढ़ रहा है। 13,000 रुपये से ट्रेड रिसीवेबल को क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट विल बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले था 10,000, नाउ इट विल बी 14,600। सो ये बढ़ रहा है तो इसको प्लस करेंगे 4,600। गुडविल, कैश इन हैंड एंड मशीनरी। गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट्स है, कैश को हम कंसिडर नहीं करते, और मशीनरी इज अ फिक्स एसेट्स तो वो यहाँ पे कंसिडर नहीं होगी। सो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा 21,000 में से आप 4,600 क्या करो? हटा दो 4 एंड 16,400 डिडक्ट कर दो। ये आ जाएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या हो गया आपका? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कैसे फाइंड आउट हुआ? 79,000 में से आप माइनस कर दो 16,400। सो ये हो गया आपका 6, 8, 2 एंड इट विल बी 7 1 गया 6, 62,600। एंड लास्ट हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड को हम लोग क्या करेंगे? माइनस, जो कि है 23,000। सो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स पेड भी वही है, मेड भी है, क्योंकि सिंगल वैल्यू ही गिवन है। सो इट विल बी 006,943 39,600 एंड यू कैन सी दैट द आंसर विल बी
39,600. It is called cash flow from operating activity. So please note down in your copy properly the solution of the question number 49. So after completing the first question of today's session, that is in question number 49, let's we move to the next question, that is in question number 50. और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये आपको हेल्प करेंगे बेसिकली जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेसिकली, या फिर आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लाइक केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू द अकाउंटेंसी, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 50. It is a very interesting question for us. Prepare a cash flow statement from the information given below. Opening cash balance and closing cash balance is given. Increase in trade receivable, it is a part of the operating activity. Increase in trade payable, it is a part of the operating activity. Loss on sale of machinery, book value sold, and it is also the part of the investing activity, operating activity. Purchase of building, it is a part of the investing activity. Issue of equity share, it is a part of the financing activity. Preliminary expenses incurred and written off, it is a part of the financing activity as well as the operating activity. And last is net profit of the year. So एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन नंबर 50 में, छोटी सी इंफॉर्मेशन गिवन है और उससे आपको प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो लेट्स वी सी इट. द क्वेश्चन नंबर 50. First of all, we write down the cash flow statement, and in this question, first of all, we find out the cash flow from operating activity. Okay, सबसे पहले हम लोग क्या नोट डाउन करते हैं, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना था? सो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट इज 55,000. उसमें हम लोग ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस. तो पहला सबसे पॉपुलर होता है डेप्रिशिएशन, एंड डेप्रिशिएशन इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. इज इन दिस क्वेश्चन द डेप्रिशिएशन इज नॉट गिवन. डेप्रिशिएशन गिवन नहीं है और क्वेश्चन में लॉस गिवन है. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज 20,000 और आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्या किया है, राइट ऑफ किया है. सो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे. इट इज 10,000. ठीक है, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, लिखेंगे यहाँ पे जरूर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यहाँ पे लिखेंगे जरूर, बट उसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा. It will be 55 plus 30 is 85. It is called operating profit before working capital changes. And after that हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. जैसे ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू दी, ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो एसेट्स इंक्रीज होता है, सो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा, माइनस होगा. अमाउंट दिया है क्वेश्चन में 1,50,000. एंड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल ऑल्सो, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल ऑल्सो, ये हो जाएगा आपका प्लस, एंड वैल्यू इज 90,000. और कैश को हम लोग कंसिडर करते ही नहीं है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी की तरह. इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के एकदम आखिरी में यू नो वेरी वेल शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. तो ये आपका ऐड और लेस करके आ जाएगा
कैश जनरेटेड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या फिर सीधे सीधे ये आंसर आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड है नहीं। सो 85 और 90 का जो टोटल है वो आ गया आपका 175 150, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर, और आप देख सकते हैं कि आंसर भी इतना ही आया है। सो ऑपरेटिंग के बाद हम लोग निकालेंगे सेकंड एक्टिविटी बी। सेकंड इज अ बी। बी विल बी अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड यू नो वेरी वेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप क्या कंसीडर करते हैं? सबसे पहला दिया है परचेज ऑफ बिल्डिंग। परचेज ऑफ बिल्डिंग इज 3 लाख। परचेज ऑफ बिल्डिंग इज 3 लाख, तो आंसर भी आपका जाएगा 3 लाख माइनस में बी का टोटल। ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टिंग के बाद आपका नेक्स्ट आएगा सिंपल सा है, बिल्डिंग परचेज हुआ 240, सॉरी फॉर दैट, परचेज हुआ 3 लाख और आपने बिल्डिंग सेल भी तो किया है। बिल्डिंग परचेज होने के साथ साथ सेल भी हुई, सेल इनफ्लो हो जाएगा। परचेज हुआ 3 लाख का और सेल हुआ 60,000 रुपीज का, सो नेट इफेक्ट कितना पड़ा? 240। सो ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालेंगे। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर द इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इशू करने पे कितना पैसा आएगा? इक्विटी शेयर इशू करने पे 2 लाख रुपए आएगा। 2 लाख रुपए का इनफ्लो होगा। बट यू नो वेरी वेल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने क्या किया था? राइट ऑफ किया था। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम हैवी कॉस्ट इनकट करते हैं। तो शेयर इशू किया 2 लाख रुपए, लेकिन आपने उसमें से क्या कर दिया? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या किया? पे किया 10,000 रुपीज का। सो ये जो 190 आएगा ये आपका सी का आंसर है फाइनेंसिंग का। सो ये आपका 1 by 1 ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का आंसर आ गया। उसके बाद क्या करते हैं सर? एंड आफ्टर दैट यू नो वेरी वेल, हम तीनों ए बी एंड सी तीनों को ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद अगर आंसर प्लस में आता है तो इट इज कॉल्ड नेट इंक्रीज, माइनस में आता है तो नेट डिक्रीज। तो ऐड कर देते हैं तीनों को, ए प्लस बी प्लस सी। सो यू कैन सी दैट टोटल आ रहा है प्लस का 190 प्लस 25, 2,15,250 एंड 240। तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आपका आएगा 25,000 नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी का जो टोटल आ रहा है दैट इज एन 25,000, इट इज एन माइनस बैलेंस। और इसी में हम लोग क्या करते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बिगनिंग का, यानी कितना है बिगनिंग का कैश बैलेंस? 60,000 ऐड कर देंगे। सो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड का, इट विल बी 35,000। गॉट इट? सो प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 इन योर कॉपी प्रॉपरली। एंड इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें छोटी सी इंफॉर्मेशन गिवन थी, समराइज इंफॉर्मेशन गिवन थी रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी की हेल्प से वी हैव टू फाइंड आउट वी हैव टू प्रिपेयर दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने ऑपरेटिंग निकाला, इन्वेस्टिंग निकाला, फाइनेंसिंग निकाला, फिर उसका नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज निकाला। So after completing the question number 50, let's we move to the next question of today's session, and this is a very important question for us. Okay,
So this is a question number 62. आज मैं जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, ये आपके टर्म 1 एंड टर्म 2 या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस जो सीबीएसई कंडक्ट कराएगी टर्म 1 या टर्म 2 में टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 62? लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 62 सेज दैट कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड देयर आर 6 इंफॉर्मेशन आर गिवन। द फर्स्ट, machine costing 5 lakh, book value 3,50,000 was sold at a loss of 10%. Number 2, dividend received at the rate of 10% on long term investment of rupees 2 lakh. Number 3, receipts for permission granted for use of trademark is rupees 1,20,000. Number 4, non-current investment purchase 1,75,000 rupees. Number 5, non-current investment costing 3 lakh was sold at a profit of 20%. And the last information, land was sold for 6 lakh, of which 40% is profit. So we have to find out the cash flow from investing activity of this question. So first of all, we write down the computation of cash flow from investing activity. So हमें क्या फाइंड आउट करना है? Computation of cash flow from investing activity, and there are basically 6 information are given. फर्स्ट इज मशीन जिसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपए, जिसकी बुक वैल्यू है 3.5 लाख रुपए, उसको आपने सोल्ड आउट कर दिया लॉस ऑफ 10%। सो ये क्या है? सेल है, तो क्या लिखेंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। कितना पैसा आया? सिंपल सी बात है, बुक वैल्यू 350 है, बुक वैल्यू है आपकी 350 और उसमें आपको 10% का लॉस होगा तो 10% कम मिलेगा ना। 350 का 10% 35,000, सो आपको मिला होगा 3,15,000। नंबर सेकेंड, डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है। कितना डिविडेंड रिसीव हो रहा है? 10% के हिसाब से, और कितने का इन्वेस्टमेंट है? 2 लाख। सो 2 लाख का आपको 10% डिविडेंड मिला है 20,000। नेक्स्ट, थर्ड, रिसिप्ट्स ऑफ परमिशन ग्रांटेड फॉर यूज ऑफ ट्रेडमार्क। आपने ट्रेडमार्क जनरेट किया या ट्रेडमार्क परचेस किया, अब आप उस ट्रेडमार्क को किसी दूसरे को दे रहे हो यूज करने के लिए, उसके बदले उससे पैसा ले रहे हो। सो इट इज ऑल्सो द बेनिफिट फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो अगर आपका कोई इंटेंजिबल एसेट्स यूज करता है और उसके बदले आपको कोई अमाउंट पे करता है, सो ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। सो द नेक्स्ट इज रिसीप्ट्स from use of trademark, and the amount is 1,20,000. Next is
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपने परचेस किया, आपने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या किया, परचेस, तो ये इससे पैसा आएगा नहीं, जाएगा. सो नेक्स्ट इज परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. आपने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने का परचेस किया है, 1,75,000. नेक्स्ट इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट है 3 लाख, आपने सोल्ड किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, आपने उसे प्रॉफिट पे सोल्ड किया. तो नेक्स्ट इज प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. आपने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट सेल किया है, कितने में सेल किया है, 3 लाख रुपीज का 20% प्रॉफिट पे. 3 लाख प्लस 20% प्रॉफिट, 3 लाख का 20% कितना आएगा, 60,000. सो आपको मिलेगा कितना, 3,60,000. नेक्स्ट इज लैंड जिसे आपने सोल्ड किया 6 लाख रुपीज में, विच इज 40% प्रॉफिट, जिसपे 40% क्या है, प्रॉफिट है. तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट के सिर्फ प्रॉफिट से मतलब नहीं है, प्रॉफिट से सिर्फ मतलब किसको होता, ये होता आपका ऑपरेटिंग. लेकिन हमें इन्वेस्टिंग में क्या चाहिए होता है, नेट अमाउंट जितने हमने परचेस किया या सेल किया. तो हमने सेल किया है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ व्हाट, लैंड सेल किया 6 लाख. सो सेल प्राइस इज 6 लाख. अब आप इसको टोटल करिए, टोटल कितने पॉइंट्स क्वेश्चंस में गिवन थे, 6 पॉइंट गिवन थे, 1 2 3 4 5 6. अब इन 6 पॉइंट्स को ऐड करिए, तो जो प्लस आइटम उसको एक साथ ऐड कर दीजिए और जो माइनस उसको डिडक्ट कर दीजिए. प्लस में कौन कौन से आइटम्स हैं, 315 20 120 360 and 6 lakh. So plus है 5, $14,15,000 प्लस का बैलेंस आ रहा है, उसमें से आप 1,75,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. इट विल बी 12,40,000. किसमें आंसर आएगा, प्लस में आएगा, 12,40,000. सो ये जो प्लस में आंसर आया, इट इज कॉल्ड नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग व्हाट एक्टिविटी. सो 12,40,000 इज अ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. नोट डाउन कर लीजिए. और इसमें आप लोगों ने देखा जितने भी इनफ्लोज थे उसको हमने ऐड किया, और जितने भी आउटफ्लोज थे उनको हमने क्या किया, माइनस किया. सो प्लीज नोट डाउन. एंड इट वाज अ क्वेश्चन नंबर 63. It was a question number 62, sorry for that. Okay. So in today's video you can see that we solved the 3 questions from the different topics. Firstly we solved the question number 49. Thereafter we solved the question number 50. In the question number 49 we discussed about the computation of the cash flow from operating activity, and in the question number 50 you can see that हम लोगों ने प्रिपेयर किया कैश फ्लो स्टेटमेंट एक छोटे से इंफॉर्मेशन से. And in question number 62 you can see that
डिफरेंट आइटम्स, मतलब इंफॉर्मेशन गिवन थी, कोई बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन नहीं था, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह गिवन था और उससे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कितना अमाउंट सेल होगा, कितना परचेज होगा, कितना इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने एनालाइज किया एंड देयर आफ्टर हम लोगों ने आंसर को क्या किया, फाइंड आउट किया। ओके, सो आई होप टुडे वी क्लियर ऑल द थिंग्स वेरी इजली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।